Hi everyone, good morning. Great. It's good that all of you are on time and the people who are not joining will be losing something. Maybe they are lazy, they are sleeping, right? Right? So first of all, I would say put your hands together for yourself. The good part is that you are on time, you are punctual, so you are going to gain a lot, right? So before we start, so we all are here to learn something, right? So there will be certain goals, there will be certain aspirations that you will be having, right? You want to achieve something in long term, there is something that you want to achieve in short term and long term, right? So can we have some kind of a like a briefing, like what really you want to do? What is your small term goal, long term goal, what you want to achieve? We will start with you. And you will get only 10 seconds. Be quick. Be quick. Okay. Fine. Become a good, good, very good. Please continue, man. बोलो यार. हाँ. Videographer, right? रुको मत. Start. Speaker. Mine is to achieve a good score in my semester exam, and my long term is to achieve a definite goal like I want to become a software engineer. I want to become a fluent in English. Doctor. My short term aim is to become a good student, and my long term aim is to become a CA. Harshit, what is your short term and long term goal? So what we have seen is that everyone is having certain dreams, right? So few of them want to be a good speaker, few want to become a good human being, right? Few want to become doctor, few want to become CA. Everyone wants to excel in their career, right? Why we are doing this? Why we are doing this? Why you want to become a doctor? Why you want to become a CA? Why you want to perform good in your life? Because so that you can get a good money and you can live a good life. At the same time you can support your parents, you can support your family. That is the ultimate aim. You want to be happy and the entire life that you are going to have further, so that it can become better, because you will be having certain skills, and with that specific skills you are going to earn your bread, right? Great. Fine. So let's take one example. Suppose you said that you want to eat one specific vegetable, let's say matar mushroom. You want to eat a specific sabji, matar mushroom. So what all efforts does it take to make that? How many people will be involved? Suppose I said that I want to, I said my parents, my cook, that I want to eat matar mushroom. So what will happen? How many integrates it is going to have? How to, the way how to cook it, right? What else? Correct. Fine. So this is something my desire that I want to eat. So there are few other things that are involved. Suppose I am saying that I want to eat something, what my parents will do? They will go to the market. My father will go to the market, he will purchase the vegetables, his efforts will be there, and before that he is going to earn that. He is going to earn the money so that he can purchase vegetables for me so that I can eat it. Then
He will be coming back, then someone will be cleaning the matters, someone will be doing the chopping, and then we will be cooking it. Correct? So there are multiple processes which are involved at the same time. First of all, there are financials which are involved. Who is going to pay the money? My father is going to pay the money for it. Who is going to do the hard work? My father has done the hard work, my cook has done the hard work, my mother has done the hard work. Correct? But suppose everyone has done the hard work, but then the cook who is coming to prepare, he is going to prepare everything. But what will happen in case he is putting more salt into the vegetable or the entire recipe? What will happen? The entire vegetable will get spoiled, the taste will get spoiled, right? So what is the learning? You use it in a specific amount. Right, absolutely right. Very well said. There is one person who has done a mistake, and that is a very, very specific mistake a person has done it. Cook. In spite of putting one chutki bhar namak, he has put the entire big table salt namak. One person did a mistake, and what is the impact of it? all the all the hard work that my father has done in terms of finance got wasted. He put a lot of effort earning that bread, and it was got wasted, right? All the hard work everyone that has done got wasted, right? So learning is that in the entire sequence, in the entire process, there could be one specific mistake that someone has done it, due to which the entire thing get spoiled, right? Now, as you said that all are having your aspirations, right? You want to become something which is very good. Did you ever realized that are you making some mistake? Are you making some mistake in your life which is going to stop you from going ahead? What is that mistake that you are making? Have you think about it? Did you know your weak area? Digital detox is one. So since we are having a limited audience, let's give 10 seconds to everyone to realize what is the mistake that they are doing, so that they can realize that and fix that, right? So we'll start from here. So lack of concentration, Concentration, distraction, distraction, consistency, consistency, time management, time management, or focus, lack of focus. focus, lack of Focus, focus, distraction, distraction, so most of the things that were very common: distraction, digital addiction, right? So what is the cause of the distraction? We are not able to focus. Focus and distraction are the two things which everyone is facing the issue, right? What is the cause for it? Digital, right? So today we are going to discuss about it, that there are certain things that you need to learn so that you can achieve your goals, right? And digital addiction is something which is common with almost everyone. It is not with you people. You people have a lot to achieve. Even your parents, your grandparents must be suffering from this, right? So let's see, let's learn about it. F5. Yeah. सर को बुलाना नीचे से, तेरा फोन उठा लेना, उनको लोकेशन बता दो, आप लोकेशन बता दो, लोकेशन बता दो, लोकेशन बता दो यहाँ की।
उसको बोलना ऊपर आ जाएगा या आप ले आओ जाके. Let's. Does anyone know how to fix this one? यार ये लगा दे एक बार. कैसे आएगा? पीपीटी नहीं आ रहा यार. हो गया? अर्षित लविश को बुला ले आओ उसको नीचे से. कैसे होगा भाई? एक मिनट. Does anyone know how to fix F5? एक मिनट. Thank you, man. Thank you. So let's start. So today we are going to learn about digital detox. We call it as digital wellness also. And we often say this is one of the life skill that you need to learn irrespective of your career, right? Whatever the field you are. And it is going to have a big impact on your life and it will help you to succeed in your life and it is going to help you in achieving your goals, right? Let's have a true opinion. So how many hours do you spend on mobile? All of you together. 8 to 9. 4 hours. Come on, everyone. 1 hour, 4 hours, in 7 hours. 4 hours. Now let's split into two things. One is, now each and everything you are going to have on the mobile. Internet banking is there on the mobile. Your study material is on the mobile. And there are various other study articles which are necessary for your career. They are all on mobile. Now let's divide in two parts. One is the useful part, the other one is the non-useful part. So suppose that you are spending 4 hours. Out of 4 hours, how much is the useful and what is the non-useful? 1 hour is useful and 3 hours useful. What about you? 8 hours useful and 4 hours non-useful. Right. So what we can say here is that almost the ratio is 50% or less than that. Most of the time we are just scrolling. Is it helping us? No. Right? So there is a very good article that we have seen. Now everything is addicted. A person is saying that, do you have a Facebook? He says no. Do you have a Twitter? No. Do you have a WhatsApp? No. Then what do you have? Life. Now people have stopped living life. Their life is just the mobile, doing useless things, which is absolutely not required. And the other person is so addicted that he is looking life in the mobile only. So he is saying, great, I need it for Candy Crush. वो कह रहा है मेरे को लाइफ भी Candy Crush में ही देखनी है अपनी. Correct? So this is how the society is, where you are looking all the happiness in the mobile, but actually it is not, right? So this is just was starting, and at the same time we need to realize that how much is too much. We just discuss about salt. कितना चाहिए? आपको पता है? Do you know how much it is? Right? But still we make mistakes. So let's understand here. When I spend more time online with than real people. मैं मोबाइल पे ही सबसे बात कर रहा हूं, लोगों से तो मैं मिलता जुलता ही नहीं हूं. उससे क्या होता है, हमारा सोशल इंटरेक्शन बहुत कम हो जाता है. When I realized I have skipped meals in favor of finishing the game. इतना एडिक्टेड होते हैं, आपने देखा है, किसी को देखा है आपने लाइफ में? गेम्स में इतना एडिक्टेड होते हैं कि खाना खाना भूल जाते हैं. इज इट गुड? बैड? बैड, राइट? When I give preference to social network notification instead of work and study. पढ़ाई मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भी नोटिफिकेशन आया सबसे पहले उसको देखना है. When I wake up at the night to pee, but to check my phone. आप रात को 1 बजे 2 बजे वॉशरूम के लिए उठते हैं तो सबसे पहले आप उठ के अपना मोबाइल देखते हैं, भाई कुछ है तो नहीं है.
व्हेन आई ईमेल, टेक्स्ट, चेक सोशल नेटवर्क वाइल ड्राइविंग। आपने कई बार इस सड़क पे देखा होगा लोग चलते चलते ही फोन यूज कर रहे हैं, राइट? व्हेन आई प्ले कंप्यूटर गेम्स वाइल वॉचिंग टीवी और ब्राउज इंटरनेट वाइल लिसनिंग टू म्यूजिक। मोबाइल ही मेरी जिंदगी है, मैं एक्सरसाइज भी कर रहा हूं तो मोबाइल मेरे सामने है। सो व्हाट इट शोज, ये हद से ज्यादा हो रहा है, ये हद से ज्यादा हो रहा है। और अभी हमारी जो एज है ये लर्निंग एज है, अगर हम इसी में संभल गए तो हमारी लाइफ बन जाएगी, और नहीं समझे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज टू मच एंड वी नीड टू रियलाइज दिस। क्या आप में से भी कोई हैबिट है इसमें से? बी ऑनेस्ट। राइट, बट फाइन, बट मोस्ट ऑफ लोगों की हैबिट्स हैं, राइट? सो इट गिव्स ए अलार्म, इट गिव्स ए अलार्म कि भाई मेरी मंजिल तो कुछ और है, मेरे को तो डॉक्टर बनना है, सीए बनना है, मेरे को अच्छा इंसान बनना है, राइट? तो मेरे को ये सारी चीजें छोड़नी पड़ेंगी। अपने दिमाग में रख लीजिए ये चीज। कहां गया बाबू हमारा? आर यू इन इंटरनेट एडिक्शन? हम अपने आप से सवाल पूछते हैं, आप अपना काउंट करिएगा उंगली पे कितनी हैबिट्स आपके अंदर है। ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे सब लोग हाथ उठाएंगे। सबसे पहले, when using the internet, do you find that you lose track of time and feel surprised when you realize the time spent surfing on the web? Right? आप कितना टाइम बिता देते हो आपको पता ही नहीं चलता। आपको तो लगता है यार अभी शुरू किया था, बट 4 घंटे कब खत्म हो गए, 6 घंटे खत्म हो गए, आपको पता ही नहीं चला। Second, have you been ashamed of or tired to hide how much time you spend on your internet connected device? कई बारी हमको खुद है ना शर्म आने लगती है अपने आप से कि भाई मैंने पूरा दिन बर्बाद कर दिया। आई कुड हैव डन समथिंग बेटर। मेरा स्कूल का होमवर्क पड़ा है, मेरा कॉलेज का पड़ा है, मेरा ऑफिस का काम रखा हुआ है, और मेरी और 4 कमिटमेंट्स थी। एंड ऑफ द डे खुद को शर्म आती है। डिड इट हैपन विद एनीवन? राइट? You have made repeated efforts to spend less time using internet connected device but found it challenging. मेरे को रियलाइज तो हो गया कि भाई मैं गलत कर रहा हूं। ठीक है, मैंने पूरा दिन बर्बाद कर दिया, 6 घंटे 8 घंटे कर दिया, मैंने अपने आप को सुधारने की भी कोशिश करी पर मैं कर नहीं पाया। स्टिल ये एक चैलेंज है, तो हम आज सीखेंगे कैसे। नेक्स्ट है, डू यू यूज द इंटरनेट टू फील बेटर व्हेन यू आर डिस्ट्रेस्ड, डिप्रेस्ड और एंग्शियस? चौथा किसके लिए एप्लीकेबल है? बस एक ही बंदे के लिए। जब भी मैं परेशान होता हूं, डिप्रेस्ड होता हूं, एंग्शियस होता हूं, कुछ सोच रहा होता हूं, मैं मोबाइल लेके कुछ करने लग जाता हूं। मेरे साथ तो होता है, आपके साथ होता है? राइट? डू यू हैव स्ट्रॉन्ग आर्ग्यू टू यूज द इंटरनेट? बिना बात के इंटरनेट चलाना। डज योर यूज ऑफ द इंटरनेट रिजल्ट इन फेलियर टू फुलफिल मेजर रोल ऑब्लिगेशंस एट वर्क स्कूल? 6 पॉइंट, जब आप इंटरनेट ज्यादा यूज करते हो, जो आपका एक्चुअल काम है, चाहे वो वर्क रिलेटेड हो, स्कूल रिलेटेड हो या होम रिलेटेड हो, वो सफर करता है। इज इट हैपन? राइट? डू यू कंटिन्यू टू यूज द इंटरनेट एक्सक्लूसिवली डिस्पाइट हैविंग परसिस्टेंट वर्क और रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय योर इंटरनेट यूसेज? अब हमने गलत काम तो किया, हमने क्या गलत काम किया? मेरा ऑफिस का काम था, मैं इंटरनेट देख रहा हूं, उससे क्या हुआ? मेरा सारा दिन उसमें निकल गया। ऑफिस का काम तो मेरा पेंडिंग पड़ा हुआ है ना, मेरा स्कूल का काम तो पेंडिंग पड़ा हुआ है, करेक्ट? मेरे घर का काम तो पेंडिंग पड़ा हुआ है, करेक्ट? बट उससे क्या होता है? जब काम पेंडिंग पड़ा हुआ होता है, सामने वाला जो आपका टीचर है वो तो बोलेगा ना, आपकी मम्मी बोलेगी कि भाई तुमने सारा घर बिखेर रखा है, खाने में कोई हेल्प नहीं करी। आपके स्कूल के टीचर बोलेंगे, आपके ऑफिस में मैनेजर बोलेंगे, सारा काम तो तुम्हारा पेंडिंग पड़ा है, तुम कर क्या रहे थे? डज इट हैपन? फिर उससे क्या होता है? लड़ाई होती है सिर्फ। जब आपका काम नहीं होगा तो लड़ाई तो होगी, करेक्ट? इस पे कहने का मतलब है कि हम फिर भी नहीं सुधरते हैं, हम फिर भी नहीं सुधरते हैं। मेरा स्कूल का काम पड़ा है, ऑफिस का काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, बट उसके बाद भी रादर देन डूइंग दैट वर्क मैं दोबारा से इंटरनेट में ही लगा हुआ हूं। आई एम इवन वेस्टिंग मोर टाइम।
यही मतलब है, डू यू कंटिन्यू टू यूज इंटरनेट एक्सक्लूसिवली डिस्पाइट हैविंग प्रॉब्लम्स? उससे क्या होता है? सिर्फ लड़ाई होती है, घर में भी लड़ाई होती है। घर में किस किस की लड़ाई होती है? कि मोबाइल में सारा दिन लगे रहते हो और कुछ काम नहीं करते। मम्मी ने अगर बोल दिया है कि बाजार से एक साबुन ले आओ, बट आप तो मोबाइल में लग रहे हो। डज इट हैपन? आपको क्या करना चाहिए? मम्मी पापा की हेल्प करनी चाहिए, जो भी काम करना चाहिए वो कर रहे हो, बट आप सिर्फ स्क्रॉल कर रहे हो। दैट डजंट हेल्प। दिस इज वन ऑफ द थिंग दैट वी वांट टू टेल। हैव यू गिवन अप इंपॉर्टेंट सोशल, ऑक्यूपेशनल, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज बिकॉज ऑफ इंटरनेट यूसेज? सेम चीज, जो आपके इंपॉर्टेंट काम है, चाहे वो सोसाइटी रिलेटेड हो, ऑफिस रिलेटेड हो, आपने वो सब छोड़ दिया बिकॉज ऑफ इंटरनेट एडिक्शन। डू यू कंटिन्यू टू यूज इंटरनेट इवन दो इट मेक्स यू फील वर्स? हमने कुछ देर पहले बात करी कि मेरे को खुद पे गलानी हो रही है कि मैंने यार 4 घंटे खराब कर दिए पूरे दिन के, पूरा संडे खराब कर दिया, पूरा सैटरडे खराब कर दिया, पूरी रात खराब कर दी मैंने। डूइंग व्हाट? स्क्रॉल। मेरा सारा काम तो रह गया जो मेरे को करना चाहिए था। मेरे पेरेंट्स इतनी मेहनत कर रहे हैं, किस लिए? मुझे पढ़ाने के लिए। करेक्ट? ऑफिस में आपको सैलरी मिल रही है काम करने के लिए, ठीक है? आपके पेरेंट्स की, आपकी खुद की अपने आप से एक्सपेक्टेशन है कि आप डॉक्टर बनेंगे, सीए बनेंगे, नर्स बनेंगे और दूसरे काम करेंगे, पर क्या आप एक्चुअली उसके लिए एफर्ट डाल रहे हैं? नहीं डाल रहे हैं, या फिर जितना डाल रहे हैं उतने नहीं डाल रहे हैं। करेक्ट? सो ये समथिंग है जस्ट टू मेक यू रियलाइज, क्या आप उस कैटेगरी में आते हैं जहां आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है? द आंसर इज यस, राइट? कौन कौन से एडिक्शंस हैं हमारे पास जो ज्यादातर हैं? गेमिंग एडिक्शन है, गेमिंग एडिक्शन, सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेमिंग, पोर्नोग्राफी एडिक्शन एंड ऑनलाइन सेक्सुअल एडिक्शन, ऑनलाइन शॉपिंग एंड वर्क रिलेटेड डिजिटल एडिक्शन। ठीक है, सारे अलग हैं। जो छठे वाला है इसका मतलब कौन समझाएगा? नहीं, ये वर्क रिलेटेड है। जो सोशल वाला है, व्हाट्सएप वाला, वो ये है ऑफिस रिलेटेड वर्क। कई लोग इतना एडिक्शन होते हैं कि ऑफिस का ही सारा दिन काम करते रहते हैं, ठीक है? जरूरत नहीं होती तो भी करते रहते हैं, राइट? सैटरडे संडे जरूरत नहीं होती है तो भी करते रहते हैं। इसको कहते हैं ओवरवर्क करना, ठीक है? विच इज ऑल्सो नॉट गुड। हम कह तो रहे हैं कि हम ऑफिस का काम कर रहे हैं, विच इज ऑल्सो नॉट गुड। हम कहते हैं कि हम सारा दिन ही पढ़ाई कर रहे हैं, विच इज ऑल्सो नॉट गुड। करेक्ट? एक चीज को जरूरत से ज्यादा करना इज ऑल्सो नॉट गुड, राइट? So these are the few problems that we are actually facing nowadays. So we will see how to overcome all these things. ये हमारी प्रॉब्लम कब से, क्या ये प्रॉब्लम शुरू से थी हमारे पास? वो कब से आना शुरू हुआ ये प्रॉब्लम्स? कोविड के बाद से, राइट? कोविड के बाद से बहुत सारे डायनामिक्स इंडस्ट्री के चेंज हुए, हर इंडस्ट्री के डायनामिक्स चेंज हुए, जिसकी वजह से वी गेट मोर एडिक्टेड टुवर्ड्स इंटरनेट, राइट? प्लस इससे पहले क्या होता था, जब हम इंटरनेट यूज करते थे ना, हमारे पास जैसे बीएसएनएल का कनेक्शन था या दूसरे कनेक्शन से, तो मैक्सिमम 1 GB मिलता था पूरे महीने के लिए। एंड वी वर वेरी प्रिकॉशियस। हम लोग है ना हर दूसरे दिन देखते रहते थे कितना हमने यूज किया, राइट? तो उसके बाद क्या हुआ, हम हमेशा एक बात करते हैं एडिक्शन की। एक इट्स नॉट वन स्पेसिफिक इंडस्ट्री, इट्स एवरी स्पेसिफिक इंडस्ट्री, जहां पे कोई ना कोई आपको ना मुर्गा बनाना चाहता है। दे वॉन्ट टू डिस्ट्रॉय यू, दे वॉन्ट टू अर्न, इन एक्सपेंस ऑफ योर्स। मतलब आपको बर्बाद करके वो अर्न करना चाहते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल। करेक्ट? अगर कोई सामने वाला फ्री इंटरनेट दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप यूज करते रहोगे। फायदा उसका है, नुकसान आपका है। तो यू नीड टू रियलाइज दिस, राइट? हमने बात करी कि हर चीज आज की डेट में ऑनलाइन है। सो कैन वी स्टे अवे फ्रॉम मोबाइल? नो, वी कैनॉट। दिस इज अ बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ। दिस इज अ very basic necessity of life that we need to use it. But what is the take here? We need to use wisely. जितना जरूरत है उतना यूज करो और टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।
एडवांटेजेस क्या है हमारे पास? देयर आर मल्टीपल एडवांटेजेस। इंटरनेट यूज करने से वर्ल्ड बहुत छोटा हो गया है और हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी भी है, कई लोगों को वर्क फ्रॉम होम मिलता है। सो देयर आर लॉट ऑफ एडवांटेजेस एंड देयर आर लॉट ऑफ डिसएडवांटेजेस ऑल्सो। व्हाट आर द डिफरेंट डिसएडवांटेजेस? नो बाउंड्रीज। आप में से कितने लोगों ने बाउंड्री सेट करी है अपनी मोबाइल यूज करते हुए? बाउंड्रीज मीन टाइम। अब मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया, अब मैं 10 मिनट मैं मोबाइल देखना चाहता हूं, ठीक है, हमने शुरू हो गया 9 बजे से लेके और कब 3 बज गए पता ही नहीं चला। क्या किसी ने बाउंड्री सेट करी कि यार मैं 9 बजे बैठा हूं तो मैं 9:15 बजे या 9:30 बजे आई विल स्टॉप दैट? बिकॉज क्योंकि वो अंदर से इतनी अर्ज होती है कि यार वो यू ब्रेक ऑल योर ओन बाउंड्रीज, राइट? ठीक है, सो वी विल लर्न हाउ टू सेट दैट, राइट? करेक्ट। अब वी हैव टॉक्ड अबाउट एडवांटेजेस, जहां पे देयर आर वेरियस एडवांटेजेस, यू ऑल नो दैट, राइट? डिसएडवांटेजेस क्या होती है? जब आप ऑफिस का काम कर रहे होते हैं तो कई बार कैमरा ऑन करना पड़ता है, जिसकी वजह से यू आर वेरी, हाँ, आप बहुत ही कॉन्शियस हो जाते हो इस चीज के लिए कि आप कैसे दिख रहे हो, आपका घर कैसे दिख रहा है, आपका बैकग्राउंड कैसे दिख रहा है, तो ये एंजाइटी क्रिएट करता है। फिर उसके बाद समटाइम इट हैपेंस आप घर से काम कर रहे हो और इंटरनेट चला जाए, देन ऑल्सो इट बिकम्स ए प्रॉब्लम। ठीक है, ये डेफिनेटली आइस और ब्रेन को हार्म करता ही करता है। फाइन। सो विल डिस्कस इन डिटेल। हमने बात करी कि हमको एक्स्ट्रा यूज हम लोग कर रहे हैं, दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू एडमिट इट, राइट? एंड व्हाट इज द इंपैक्ट? व्हाट इज द इंपैक्ट? हमारा करियर खराब होने का डर है। क्या हम अपना करियर खराब होने देंगे? नहीं। हम आज से ही देखेंगे कि क्या क्या इसके नुकसान हैं और कैसे हमें इसका समाधान करना है। ठीक है, सबसे पहले नुकसान देखते हैं क्या होता है। फिजिकल, जितने लोग मोबाइल से काम करते हैं, ओबिसिटी, ज्यादातर आप लोग देखोगे मोटे होते हैं, सारा दिन ऑनलाइन काम कर रहे हैं, बैठे हुए हैं और पूरा दिन बैठे रहते हैं। ठीक है, अल्टीमेटली क्या होगा? वो लोग मोटे हो जाएंगे। डिस्टर्ब स्लीप, करेक्ट? जितने लोग सारा दिन काम करते हैं उनकी स्लीप भी डिस्टर्ब होती है, और स्लीप डिस्टर्ब होती है तो सब चीज डिस्टर्ब हो जाती है। बॉडी पेन्स, आप खिलोगे जुलोगे नहीं तो शरीर में जंग लग जाएगा। ठीक है, आई स्ट्रेन्स। ठीक है, पहले पहले आज से जब मैं फर्स्ट में था, सेकंड में था, 10th तक, इवन कॉलेज तक, अगर 40 बच्चे हैं ना तो 4, आई एम टॉकिंग अबाउट 10%, 4 लोगों को भी चश्मा नहीं लगा होता था। ठीक है, बट अब रेशियो क्या है? पहले 10:9 होता था, 10 लोगों को चश्मा लगा होता था, करेक्ट? और आज की डेट में क्या है? उल्टा है। एक कह सकते हो कि ये बचपन है ना, मतलब बचपन में चश्मा लग गया, विच इज वेरी बैड। ठीक है, जिसकी और कई चीजें होती हैं जो हम अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, सो यू नीड टू टेक केयर। ये फिजिकल डैमेजेस होते हैं हमारे, राइट? फिर हमारे मेंटल डैमेजेस, ये इससे भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। जितने लोग हर किसी को अटेंशन इश्यूज, किसी ने अटेंशन इश्यूज, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? Gaining someone attention all the time. करेक्ट। तो वो इसका एक एग्जांपल देंगे आप, अटेंशन इश्यूज? That's to active listening. And listening to but you know listening. ये एक है। सेकंड, A person can do anything for taking attention. राइट। आजकल क्या होता है, मैंने अपना स्टेटस अपडेट किया, मैंने अपना स्टेटस अपडेट किया, अब मैंने अपना स्टेटस अपडेट किया, मेरे हिसाब से मैंने समथिंग एक बहुत अच्छी अपना स्टेटस लगाया। अब मैं सारा दिन ना मैं देखता रहूंगा यार, मेरे इसमें तो 500 लोग हैं, कितने लोगों ने लाइक किया मेरे को, कितने लोगों ने लिखा बहुत अच्छा, कहते कितने लोगों ने थम्स अप दिखाया, किसी ने लव लिखा। तो आई एम लुकिंग, व्हाट आई एम लुकिंग फॉर? अटेंशन। बिना बात के मैंने सरदर्दी मोल ली। क्या ये जरूरत थी मेरे को?
भाई मेरी लाइफ है, मैं आगरा गया, ताजमहल गया, और मैं इंडिया गेट गया, या मैं कहीं और गया, मैंने अपना स्टेटस अपडेट कर दिया, फिर मैं 3 दिन तक मैं यही फॉलो अप कर रहा हूं कि भाई कितने लोगों ने लाइक किया, राइट? ये एक फालतू का काम है। इससे क्या होता है? एंग्जाइटी इश्यूज, साइबर बुलिंग। व्हाट इज साइबर बुलिंग? हम किसी की गलत तस्वीर है, किसी लड़का की लड़की की, हम इस तस्वीर के अंदर कुछ चेंजेस कर देते हैं ताकि वो गलत दिखे, फिर हम उसको ब्लैकमेल करते हैं, करेक्ट? या गलत तरीके से पोस्ट करने की कोशिश करते हैं, तो हम क्या करते हैं? साइबर बुलिंग। ठीक है, किसी को ब्लैकमेल करना या उसको परेशान करना। वायलेंस एंड एंगर इश्यूज, ये वायलेंस आपने देखा? हमने कितने सारे हम चीजें रोज सोशल मीडिया पे देखते हैं, बच्चे बहुत वायलेंट हो गए हैं, बहुत ज्यादा वायलेंट हो गए। किस वजह से? क्योंकि जो वो सोशल मीडिया में देखते हैं वही, और जो अपनी गेम्स में देखते हैं, गेम्स में किस तरीके से मारकाट होती है, ठीक है, सेम वो एक्चुअल अपनी लाइफ में परफॉर्म करते हैं। आपने बहुत रिसेंटली यूपी के अंदर हुआ था जिसने उसने अपने पेरेंट्स को ही मार दिया था, और भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, ये वायलेंट चीजें और एंगर इश्यूज तो हैं ही। ठीक है, सो दीज आर द नेगेटिव इंपैक्ट सोशल। आप सोशली, कोई आपको कह रहा है कि यहाँ चलना है, आप इतने लथार्जिक हो जाते हो, या किसी से मिलना ही नहीं चाहते, आप बोले सोशली बात कर लूंगा, ऑनलाइन बात कर लूंगा, पर मैं जाऊंगा नहीं। ठीक है, फिर डिक्रीज्ड परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी। जब ये सारी चीजें रहेंगी तो डेफिनेटली आपकी परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी भी डिक्रीज होगी। ये सारी इश्यूज हैं, आप एक बार ध्यान से देखिए। क्या आप में से लोग ये फेस कर रहे हैं? करेक्ट, ये सारे इश्यू सिर्फ आप ही नहीं, 99% लोग फेस कर रहे हैं। ठीक है, इसी को एड्रेस करना है हम लोगों को, ताकि हम अपने करियर में जो हम चाहते हैं वो उसको अचीव कर पाए, राइट? बिफोर इट्स इंपॉर्टेंट टू रियलाइज कि अगर हम नहीं सुधरेंगे तो इसके नेगेटिव इंपैक्ट्स क्या हो सकते हैं। आपने फैटिक के बारे में सुना? फैटिक मतलब थकान होना, करेक्ट? पहले क्या होता था, लोग साइकिल चलाते थे, पैदल चलते थे, और 10 तरीके के काम करते थे, तो वो फिजिकली थक जाते थे। बट आज की डेट में आप कैसे थक रहे हो? वर्चुअल थक रहे हो। आप सारा दिन मोबाइल पे लग रहे हो, आपने कुछ काम किया, आपने बॉडी हिलाई नहीं हिलाई, राइट? आपने एनर्जीज फूकी, अपनी कैलोरीज बर्न करी नहीं करी, बट फिर भी आप थक गए। ठीक है, इसको हम कहते हैं फैटिक। इट्स नॉट एक्चुअली फैटिक, इट्स अ वर्चुअल फैटिक, राइट? अब बिना काम किए थक रहे हो आप, और आप इसको कैसे कर सकते हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आप सबको स्लाइड्स दे दूंगा। ये वर्चुअल टाइम ऑफ, सबसे पहला आपको अपना जो कनेक्शन है कट ऑफ करना है। जो भी आपकी वर्चुअल चीजें हैं, चाहे वो मोबाइल हो, टीवी हो, कि आपको अपने अपने आप से सवाल करना है, हाउ मच इज टू मच? हाउ मच इज टू मच? इतना सा नमक डालना है या इतना डालना है? क्या ये जरूरत है? क्या हम इसको बंद कर सकते हैं? फाइन, जहां जरूरत नहीं है उसको बंद कर सकते हैं। टर्न ऑफ द नोटिफिकेशंस। टर्न ऑफ नोटिफिकेशंस का मैं आपको एग्जांपल देता हूं। व्हाट्सएप में ग्रुप्स में आप लोग हैं, मल्टीपल ग्रुप्स में है, तो कई बार होता है, या फेसबुक में या इंस्टा पे, जैसे ही आपके पास कोई मैसेज आता है तो एक नोटिफिकेशन आता है आपके पास, राइट? क्या उस नोटिफिकेशन को बंद किया जा सकता है? राइट? मेरे जितने भी ग्रुप्स हैं सब में नोटिफिकेशन बंद है। मैसेज आएगा, जब मेरे पास समय होगा तो मैं उसको पढ़ लूंगा, करेक्ट? हाँ, अगर कोई, और एक्सपेक्टेशन सबसे ऐसे रखो कि यार कोई इंपॉर्टेंट काम है तो गिव इट डायरेक्टली फोन कॉल, क्योंकि मैं फ्रीक्वेंटली नहीं देखता हूं। मैं नोटिफिकेशन बंद करो, क्योंकि जैसे ही मोबाइल का टुन बनेगा ना, आपके अंदर से एक अर्ज उठेगी कि भाई मेरे को ये देखना है। जब वो बजेगा ही नहीं तो आप नहीं देखोगे। ये बहुत हेल्प करता है। किसी के साथ कोई डिस्कशन करनी है, मेरे को यहां पे आना है, मेरे को डिस्कशन करना है, तो मैं पहले से क्या करूंगा, अपना कैलेंडर ब्लॉक करके रखूंगा। 9 से 10 कोई काम नहीं, आई हैव टू बी देयर, राइट? सेट ए डेडलाइन। हर जो भी आप काम कर रहे हो उसकी डेडलाइन बनाओ और समय पे कंप्लीट करो। शिफ्ट टू रेगुलर फोन्स और ईमेल व्हेन इट इज पॉसिबल। वन इट्स पॉसिबल, मतलब सारा दिन ही आप फोन पे या मोबाइल पे मत लगे रहो, जब जरूरत है तभी करिए। आप लोग जितना भी स्क्रीन का काम है वो सारा किससे है?
क्या आप में से कुछ लोग एक्सरसाइज करते हैं आइस की? कोई भी आइस की एक्सरसाइज नहीं करता? आपको सारी जिंदगी किससे काम करवाना है? पहले ही आंखें बहुत थक चुकी हैं, पहले ही उसमें क्या है, फैटीग है, वर्चुअल फैटीग है। क्या आपको क्या लगता है कि आप अपनी दादी की उम्र तक कर पाओगे काम? उसका आधा भी नहीं कर पाओगे, उसका आधा भी नहीं कर पाओगे। योर पेरेंट्स, योर ग्रैंड पेरेंट्स आर लिविंग मच हेल्दियर एंड बेटर लाइफ। तो हमको क्या करना है? आइस की एक्सरसाइजेस भी करनी है, ठीक है। आइस की एक्सरसाइज आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी, नहीं तो अगले सेशन में मैं आपको बता दूंगा, करेक्ट। और एक बेसिक एक्सरसाइज भी मैं आपको अभी बता देता हूं। एक कॉन्स्टेंटली आप स्क्रीन पे देख रहे हो, तो आप अपना एक अलार्म लगा के रखिए हर 20 मिनट का, 30 मिनट्स का, ठीक है। फिर उसके बाद 20 फुट दूर, 25 फुट दूर जरूर देखिए आप। मैं अपनी स्क्रीन पे देख रहा हूँ, 20-20 का हम रूल बोलते हैं कि हर 20 मिनट के बाद 20 फुट की दूरी पे आप जरूर देखिए, ठीक है। 20 सेकेंड्स के लिए आप जरूर देखिए, ठीक है। सो डैट रियली हेल्प्स। और ये सर बातें बताने के लिए नहीं है, ठीक है, इट्स अप टू यू। ये सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो कि बहुत रिसर्च करके बनाई जाती हैं और आपके फायदे के लिए हैं। स्टे हाइड्रेटेड, हमेशा पानी पीते रहो ताकि आपकी बॉडी में एनर्जी रहेगी। क्लियर योर डिजिटल एंड टेंजिबल क्लस्टर। व्हाट डज इट मीन? क्लटर क्या होता है? गंदा क्या हुआ? जैसे हम कहते हैं कि रूम गंदा होता है तो हम क्या करते हैं, उसको क्लीन अप करते हैं, करेक्ट। उसी तरीके से डिजिटल डीक्लचर क्या होता है? आपके पास बहुत सारी ईमेल्स आ रही हैं, वो क्या कर रही हैं? आपके मेल बॉक्स को गंदा कर रही हैं। क्या उसकी जरूरत है? नहीं जरूरत है। आपने एक आजकल क्या होता है कि डाटा को बेचा जाता है, ठीक है। आपने एक जगह किसी चीज के लिए इनरोल कर लिया किसी इंस्टीट्यूट में, ठीक है, और वो डाटा है ना 500 जगह अपने आप चला जाएगा, और वो सब लोग क्या करते रहेंगे? आपको मेल भेजते रहेंगे। तो आप लोग क्या करेंगे? उसमें डिजिटल डी क्लचर करेंगे। डी क्लचर मतलब अगर कोई आपको फालतू की ईमेल आती है, आप उसको ब्लॉक कर दीजिए। ब्लॉक कर दोगे तो दोबारा वो गंदा करेगा ही नहीं आपका मेल बॉक्स, राइट? करेक्ट। यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डी क्लचर हेयर? आपको पहले ही दिन वो ब्लॉक करना है, नहीं तो वो 500 बारी और मेल डालेगा, आपका मेल बॉक्स गंदा करता रहेगा वो। तो पहले दिन ही उसको अनसब्सक्राइब कर दो या फिर ब्लॉक कर दो, ताकि दोबारा से वहां से मेल आए ही ना या नोटिफिकेशन नहीं आए। रिफ्रेश योर रूम है सिंपल चेंजेस। नॉर्मली बोला जाता है आप थोड़ा थोड़ा चेंजेस करते रहिए अपने रूम में, ताकि आप थोड़ा सा बेटर फील करो। हमने अभी बहुत सारी चीजें देखी, डज इट हेल्प यू? ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ और चीजें हैं जो कि हमें हमेशा करनी चाहिए। लेट्स सी फर्स्ट वन, अवॉइड लुकिंग एट योर फोन फॉर फर्स्ट आवर ऑफ द डे। कितने लोगों की प्रैक्टिस है कि सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल देखते हैं? सुबह उठा और सबसे पहले मोबाइल देखा, ऑलमोस्ट 70%, करेक्ट। हाउ डज इट इंपैक्ट अस? सुबह जब आप उठते हो तो फ्रेश दिमाग से उठते हो, आपके पास कोई थॉट नहीं होती, आपने अपना सारा ब्रेन लगा दिया, सबसे पहले अपनी स्क्रीन देखी और विच इज नॉट गिविंग ए गुड सिग्नल, उसकी जो ब्लू आइस है, ब्लू रेस है, विच इज नॉट गुड। तो आपको हैबिट ये बनानी है कि यार सुबह 1 घंटा उठ के मोबाइल ही नहीं देखना है। एम आई मिसिंग समथिंग? क्या मेरा कुछ छूट जाएगा? क्या छूट जाएगा बताइए? कोई एक स्पेसिफिक सिनेरियो हो सकता है लाइफ में जब आपको पास कुछ इंपॉर्टेंट हो। मैं नहीं देखता हूं सुबह 2 घंटे मोबाइल, मैं 3 घंटे भी नहीं देखता हूं। मैंने क्या बोला हुआ है कि अगर किसी को इंपॉर्टेंट है ना कुछ मेरे से काम, ठीक है, मेरे को फोन कॉल कर देना भाई, मेरे को फोन में सारा दिन मोबाइल नहीं देख सकता। तो यही आपको एक्सपेक्टेशन अपने दूसरे लोगों से रखनी है कि भाई मैं सुबह 2 घंटे फोन ही नहीं देखता हूं मैं, ठीक है, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है जो कि आपसे छूट जाएगा। दिस इज अ वेरी वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस, लुकिंग एट द मोबाइल इन फर्स्ट आवर ऑफ द डे। ये क्या है जो हमने पीछे देखा, ये आपकी मेंटल हेल्थ खराब करता है। आप रियलाइज नहीं करोगे इस चीज को, आप रियलाइज नहीं करोगे क्योंकि आपको कोई बताता ही नहीं है, करेक्ट। और यू नीड टू लर्न दिस, म्यूट और अनफॉलो पीपल दैट ब्रिंग यू डाउन। कई फालतू के लोग होते हैं,
बहुत सारे मिलेंगे आपको, ठीक है, उनको ब्लॉक कर दो। परफेक्ट। उससे क्या होगा, आपका पीस ऑफ माइंड रहेगा, भाई मेरे को इधर से बात ही नहीं करनी, खत्म बात, डन। सेट रियलिस्टिक टाइमर्स एंड कीप टू देम। कोई भी आप स्पेसिफिक, जैसे कि हमने कुछ देर पहले बात करी, सेट योर ऑन बाउंड्रीज। हम मोबाइल से दूर नहीं रह सकते, हम सोशल मीडिया से दूर नहीं रह सकते, ये एक बेसिक नेसेसिटी बन गई है लाइफ की, राइट। बट क्या हम इसको लिमिट कर सकते हैं? मेरा व्हाट्सएप है, मेरे को टाइम भी पास करना है आधा घंटा, तो मैं लिमिट बना लूंगा कि यार 15 मिनट देखूंगा मैं। 15 मिनट के बाद एक अलार्म लगा लीजिए और 15 मिनट के बाद मैं उस फोन को हटा के रख दूंगा, राइट। कीप योर फोन इन ड्रॉर व्हेन नॉट इन यूज। हम ये भी कहते हैं, प्रिजन भी कहते हैं, हम जेल कहते हैं। जब अगर मेरा फोन यहां पे रहेगा, ठीक है, अगर मेरा फोन मेरे हाथ में है, ठीक है, तो जैसे ही मेरे को समय मिलेगा ना, मैं फोन उठाऊंगा और देखने लग जाऊंगा, क्या देख रहा हूं मुझे भी नहीं पता, बट मैंने फोन को पकड़ लिया और ऑन किया और कुछ देख रहा हूं, कुछ नहीं तो व्हाट्सएप देख लिया, कुछ भी चला लिया। डज इट हैपन विद यू? किस किस के साथ होता है कि कुछ भी नहीं कर रहे, मोबाइल साथ में, आपके साथ होता है? फिर हाथ क्यों नहीं खड़ा किया? इट हैपन्स विद ऑलमोस्ट 90% पीपल, राइट। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? अपने फोन को ड्रॉर में रखो, भाई जरूरत ही नहीं है तो क्यों यूज करना, करेक्ट। या फिर हम एक कहते हैं, एक एक वर्चुअल प्रिजन कहते हैं, एक वर्चुअल जेल कहते हैं, भाई उसके अंदर रख देना है, ठीक है। सो नो इश्यूज, वी विल स्टार्ट लाइक दिस वे ओनली। टेक ए डे ऑफ, हम बोलते हैं टेक ए डे ऑफ, मतलब क्या कोई ऐसा दिन है जब हम बिना मोबाइल के रह सकते हैं? एंड एंजॉय विद नेचर, करके देखो, अच्छा लगता है। आज संडे है, ठीक है, हर किसी की अपनी जॉब, कुछ एक्टिविटीज होती हैं, कई ऐसे लोग होते हैं जिनको एक्चुअली फोन की जरूरत नहीं होती है। अगर मैं पूरा दिन फोन अपना बंद करके रखूंगा ना, बिलीव मी इट इज नॉट गोइंग टू इंपैक्ट मी। कितने लोग ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास मोबाइल होता है और वो अगर फोन को बंद करके रख देंगे तो इट इज नॉट गोइंग टू इंपैक्ट देम। इज इट पॉसिबल? पॉसिबल है। किस किस के साथ पॉसिबल है ये? क्या हम एक डे बना सकते हैं, मे बी संडे, एंड इट इज गोइंग टू हैव ए ह्यूज इंपैक्ट, बिलीव मी इट्स गोइंग टू हैव ए ह्यूज इंपैक्ट, वन डे विदाउट इट, राइट। और कहां यूज करो उस फोन को? नेचर के साथ यूज कर सकते हैं। Oh, great. And what is the next one? Setting a guideline for reducing mobile usage and use it for a right purpose. So this is something that we discussed, right? So you have to keep track of yourself. एकदम से जितनी भी गलत आदतें हैं, क्या वो एकदम से छूटती हैं? सिगरेट की, शराब की, ये क्या है? सिगरेट और शराब क्या है? एडिक्शन है, राइट। इट इज गुड और बैड? करेक्ट। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे, वी ऑफन से दैट दे हैव टू गो टू डी एडिक्शन सेंटर्स, करेक्ट। सबसे गंदी सोसाइटी में चीज क्या मानी जाती है? सिगरेट, शराब, एंड राइट, और जो नशा होता है, राइट। क्या आप लोग भी एडिक्ट हैं किसी चीज से? यस। तो आपको भी यू नीड टू ट्रैक योर सेल्फ कि पहले आप 4 घंटा मोबाइल देखते थे और विद ऑल दिस गुड प्रैक्टिसेस अब आप उसको रिड्यूस करके 3 घंटे पे आ गए हो, 3 घंटे से आप 2 घंटे पे आ गए हो, 2 घंटे से 1 घंटे पे आ गए हो। कैन इट बी डन? आपको अपना ध्यान खुद रखना है, अपने आपको खुद आपको डी एडिक्ट करना है इन चीजों से, करेक्ट। और बिलीव करो ये उतना ही हार्मफुल है जितना सिगरेट और शराब है। सिगरेट और शराब लॉन्ग टर्म में क्या करता है? बहुत नुकसान करता है, करेक्ट। सिगरेट शराब से क्या करते हैं लोग? जब लोग शराब पीते हैं तो क्या करते हैं? गलत हरकतें करते हैं, क्राइम करते हैं, गुस्सा करते हैं, एक दूसरे को मारते पीटते हैं, घर में वायलेंस होता है। क्या सेम थिंग यहीं पे होती है? करेक्ट। हाँ, कुछ लोगों का पड़ता है विच इज बैड। ये सोसाइटी के अंदर ना कई
कई गलत चीजें हैं जिनको बोल के और ज्यादा गलत चीजों को बढ़ावा दिया जाता है, विच इज वेरी बैड। नो ब्लू लाइट 1 hour प्रायर टू बेड। जितनी हम पॉइंट्स देख रहे हैं ये सब के सब बहुत इंपॉर्टेंट है, हर पॉइंट की अपनी वैल्यू है। ये हमने स्लीप मैनेजमेंट में भी देखा था। स्लीप मैनेजमेंट के सेशन में हमने बोला था कि एक तो किसने इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया, इट्स ऑलमोस्ट 1 week वी डिस्कस्ड अबाउट दैट। हमने जब लास्ट टाइम ये क्वेश्चन पूछा था तो सबने बोला था कि सोने से तुरंत मतलब हम मोबाइल देखते ही सोते हैं, सोने से तुरंत पहले हम मोबाइल जरूर चेक करते हैं, राइट। फिर हमने डिस्कस किया था कि सोने से 1 घंटा पहले, एटलीस्ट 1 घंटा पहले आप अपने मोबाइल को नहीं देखेंगे। हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्चुअली इंप्लीमेंटेड इट? किसी ने इंप्लीमेंट नहीं किया, सो विच इज बैड, करेक्ट। तो ये सारी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं आज आपको बता रहे हैं, बट इससे पहले कि आपका और ज्यादा नुकसान हो, यू नीड टू लाइक चेंज योरसेल्फ, करेक्ट। क्यों चेंज करना है? हमने शुरू में बात करी, हमने शुरू बिकॉज यू हैव योर ओन ड्रीम्स। अगर आप अपने ड्रीम से कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो, इट्स ओके, क्योंकि ये सारी गलत आदतें आपको हार्म करेंगी। और एक चीज मैं आपको और मैं बता देना चाहता हूं, जब हमने एक लाइन लिखी है, नो ब्लू लाइट्स 1 hour प्रायर टू द बेड, आपको क्या लगता है कि ये ऐसे ही उठाया और लिख दिया? क्यों लिखा गया? किसने लिखा गया ये बताइए? इट्स ए ओपन सेशन, आप कुछ भी प्लीज बोलिए आप। हाँ, Sir, brain needs to redesign itself. Otherwise, my brain thought what I seen last years. सर ने बहुत अच्छी बात बोली है। जितने पहली चलिए इसमें एक चीज और हम डिस्कशन करते हैं, जितने भी लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं, हम सब लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं, हम सब मोबाइल देखते हैं, करेक्ट। आप में से कितने लोग हैं जो जीरो नंबर का चश्मा लगाते हैं? अगर आप नहीं लगाते तो आप प्लीज लगाइए, क्योंकि जो आजकल के जो चश्मे आ रहे हैं उसके अंदर स्पेसिफिकली डिजाइंड होता है, जो ब्लू रेस होती हैं उनको फिल्टर करता है, ठीक है। उससे क्या होगा, आपकी आंखें खराब नहीं होंगी और साथ में उसके ऊपर स्ट्रेन नहीं पड़ेगा। हम हमेशा एक चीज कहते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अरे आपकी आंखें खराब क्यों करनी है? उसको खराब ही मत होने दो ना। आंखें खराब क्यों करनी है? उसको खराब ही मत होने दो भाई। एक जीरो फ्रेम का चश्मा बनवा लो जिससे कि आपकी आंखें खराब होंगी ही नहीं, राइट, ठीक है। ये पहली चीज थी। दूसरी चीज हमने बोला कि ये क्यों लिखा गया है, ठीक है। ऐसे ही नहीं लिखा गया, इसके पीछे बहुत सारे मेडिकल रीजंस हैं, बहुत सारे मेडिकल रीजंस हैं। और जब भी हम किसी भी चीज की बात करते हैं, किसी रिसर्च की बात करते हैं, तो रिसर्च को कि क्या सोने से 1 घंटा पहले हमें मोबाइल नहीं देखना चाहिए, इसके ऊपर बहुत रिसर्च होती है, बहुत रिसर्च हुई। और रिसर्च को कौन करता है? साइंटिस्ट करते हैं, इंजीनियर्स करते हैं, पीएचडी करते हैं, या पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स करते हैं। और इसमें खर्चा कितना आता है रिसर्च को करने में? करोड़ों अरबों रुपए का खर्चा आता है, करोड़ों रुपए का खर्चा आता है। हजारों लोग मिलके रिसर्च करते हैं और रिसर्च करने के बाद क्या लिखा जाता है? उसके रिजल्ट्स लिखे जाते हैं, ठीक है। वो रिजल्ट्स अपने आप में हजारों पेज के होते हैं। करोड़ों अरबों रुपया खर्च किया जाता है रिसर्च के अंदर, करोड़ों अरबों हजारों डॉक्टर्स हैं इसके ऊपर रिसर्च करते हैं। फिर उसके बाद क्या जो उसके रिजल्ट पेपर्स हैं वो भी हजारों, इतने पेपर्स होते हैं हजारों में जो कि लिखे जाते हैं। क्या आपको कोई बोलता है कि उन पेपर्स को पढ़ो? नहीं। प्रैक्टिकली फिजिबल है आपके लिए वो सब पेपर्स पढ़ना? नहीं। बट वो रिसर्च किसके लिए हो रही है? वो आपके लिए हो रही है, ताकि आपकी लाइफ बेटर हो। और आप तक वो मैसेज पहुंचाने के लिए आपको कोई भी वो हजारों लाखों जो रिजल्ट्स के पेपर हैं नहीं शेयर किए जाते, आपको सिर्फ एक लाइन में बताया जाता है ताकि आप उस बात को समझ जाओ और अडेप्ट कर सको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, इसको हल्के में मत लो। बहुत रिसर्च होने के बाद ये चीज सामने आती है कि ये इंपॉर्टेंट है, और हर चीज जो आपको बताई गई है वो रिसर्च के बेसिस पे है। ठीक है, फाइन। नो स्क्रीन वाइल हैविंग मील्स, ये भी हमेशा बोला जाता है। इसके भी साइंटिफिक रीजंस हैं कि आजकल का ट्रेंड क्या है, छोटे बच्चे से लेके बड़े तक जब तक मोबाइल नहीं चल रहा है तब तक रोटी अंदर ही नहीं जाती है, गले से नीचे ही नहीं उतरती है। करेक्ट, विच इज वेरी रॉन्ग। तो जब भी आप खाना खाते हैं आप मोबाइल को प्लीज दूर रखिए। कीप नो स्क्रीन जोन इन द हाउस लाइक प्रेयर रूम्स, बेडरूम इफ पॉसिबल। कीप मोबाइल अवे फ्रॉम योर सेल्फ फॉर सम टाइम, डिफिकल्ट टू रीच। हमने ये चीज पहले भी बात करी कि मोबाइल को अपने से दूर रखो, नहीं तो एक मन के अंदर एक वो रहता है कि यार मोबाइल मेरे यहां रखा है तो आके देख लूं मैं उसको, बिना बात के देख लूं। मोबाइल को हम कहते हैं ताखे पे रखो, बहुत दूर रखो अपने से। ठीक है, या फिर एक कह दो कि एक वर्चुअल प्रिजन है, मैंने यहाँ पे रख दिया और मेरे हिसाब से ये जेल है, वर्चुअल जेल है, मैं उस मोबाइल को ले ही नहीं सकता जब तक वो बजे नहीं। करेक्ट, सो विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अनइंस्टॉल नॉट नीडेड एप्स, तो जितने भी हमारे पास एप्स हैं, फालतू के एप्स हैं, आप अपने मोबाइल में देखिएगा दुनिया भर के फालतू के एप्स होंगे, आप उसको अनइंस्टॉल करिए, बिकॉज इट इज गोइंग टू ईट अप योर बैटरी, एट द सेम टाइम इट इज गोइंग टू ड्रेन योर ब्रेन, राइट। सेट टाइमलाइन व्हेन सर्चिंग समथिंग फॉर शॉपिंग, हमने ये चीज बात करी कि अपनी बाउंड्रीज बनाओ। अगर आप कुछ ऑनलाइन भी लेना चाहते हो शॉपिंग के लिए तो अपने पहले दिमाग में सेट कर लो कि यार मेरे को ना 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगाने, 15 मिनट में मेरे को आई हैव टू टेक ए डिसीजन, यस नो, एंड आई हैव टू कम आउट ऑफ इट। करेक्ट, मेरे को उसमें लॉस्ट नहीं होना कि यार एक चीज देख रहे हो पूरा दिन उसी को देखे जा रहे हो, नहीं। ठीक है, सेट द बाउंड्रीज हियर। डोंट यूज द स्क्रीन फॉर कामिंग एंड डिस्ट्रैक्शन एंड डिस्ट्रैक्टिंग योरसेल्फ। फोन को अपने आप को खुश करने के लिए यूज मत करो, ठीक है, बिकॉज वो अल्टीमेटली डिस्ट्रैक्ट ही करेगा आपको। अगर आप इन सारी चीजों पे कंट्रोल कर लोगे तो क्या होगा, आपकी स्लीप बेटर होगी। ठीक है, ये सारी चीजें किससे कनेक्टेड है, स्लीप के साथ भी, हमने लास्ट टाइम भी डिस्कशन किया। और स्लीप बेटर होगी तो क्या होगा, आपका फोकस बेटर होगा, आपकी मेमोरी बेटर होगी, आपकी प्रोडक्टिविटी बेटर होगी, आपका स्टेमिना बेटर होगा, आपका स्टमक बेटर होगा और आपकी ओवरऑल हेल्थ बेटर होगी। स्लीप के दुनिया भर के बेनिफिट्स हैं। ठीक है, और ये किससे कनेक्टेड है, आपके मोबाइल से। ठीक है, स्लीप इज गुड, एवरीथिंग इज गुड। आपकी आंखें बचेंगी, आप अपनी फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाओगे। आज की डेट में सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़ा घर में होता है, फैमिलीज में होता है, फ्रेंड्स में होता है, हस्बैंड वाइफ में होता है, डाइवर्स ज्यादा होते हैं, ज्यादा देर चल नहीं पाती है शादी। क्यों, बिकॉज ऑफ दिस थिंग। नेचर के साथ कनेक्ट करो, अपने से कनेक्ट करो, और दिस इज मोर इंपॉर्टेंट, मोर टाइम फॉर डूइंग इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट वर्क। जो हमारा जरूरत का काम होता है वो तो हम छोड़ देते हैं, चाहे स्कूल का हो, ऑफिस का हो, हम छोड़ देते हैं। बट जो काम जरूरी नहीं है, स्क्रॉल करना जरूरी नहीं है, बट हम वो नहीं छोड़ते। ठीक है, उससे बढ़िया वो काम खत्म करें जो कि एक्चुअली जरूरी है। Fine. So this is the final slide that we are having. So अपने अंदर, इससे पहले हम हमेशा कोई ना कोई एक एक्टिविटीज अपने अंदर रखते थे। जब हम छोटे होते थे या तो हम ड्राइंग करते थे, या गाना गाते थे, या फुटबॉल खेलते थे। कुछ एक स्पेसिफिक हैबिट्स होती थी, लूडो खेलते थे, राइट। कुछ तो गेम्स थी जो हम खेलते थे, राइट। सो अपने अंदर दोबारा से कुछ ना कुछ ऐसा पैशन क्रिएट करो ताकि आप फोन से डिस्कनेक्ट होकर एक्चुअली कम बैक टू द बेसिक्स, राइट। कनेक्ट विद नेचर। हाउ मेनी ऑफ यू कनेक्ट विद द नेचर? ग्रेट। अपने घर में कुछ पौधे लगाओ, ठीक है, उनको पानी दो, उनकी टेक केयर करो। आपके पास कच्ची जमीन है तो ठीक है, नहीं तो गमलों में ही दो लगाओ। उससे क्या होगा कि आप उन पौधों को जब देखोगे ना, अपने आप को बहुत
फ्रेश महसूस करोगे, यू गेट कनेक्टेड टू द नेचर, राइट? सी द रियल वर्ल्ड इन फ्री टाइम। जब आप मोबाइल से दूर हटोगे तभी तो दुनिया नजर आएगी आपको, राइट? अभी आपको दुनिया नजर नहीं आ रही, सिर्फ मोबाइल ही नजर आता है। डी क्लचर द हाउस। अपने जब घर को आप साफ सुथरा रखोगे, नॉर्मली होता है क्या है, कहीं पे कुछ कचरा रखा है, मम्मी ने बोल दिया उठा दो, तो आप उठाओगे नहीं क्योंकि आप बिजी हो। आप बिजी हो मोबाइल देखने में, तो घर को साफ रखोगे तो अंदर से भी अच्छा लगेगा आपको। नॉर्मली हमने बोला कि हम अपनी फैमिली से डिस्कनेक्ट हैं। क्यों कनेक्टेड हैं? क्योंकि सब लोग अपना अपना मोबाइल लेके बैठे हैं अपने अपने कमरे में, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। इसलिए अच्छा है हम स्पेसिफिकली बोलते हैं खाने के समय पे, सर 5 मिनट बस, है ना? सो वही एक खाना अपनी फैमिली के साथ, एक मील हमेशा लो, चाहे ब्रेकफास्ट लो, लंच लो, डिनर लो। उस समय फोन इज नॉट अलाउड। सब लोग अपना फोन है दूर ताके पे रखो, और ऐसी दूर रखो कि आपका हाथ ना जा पाए, ताकि फैमिली के साथ बात करो। जब फैमिली के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी होगी तो आपको नींद भी अच्छी आएगी और फैमिली रिलेशन भी बना रहेगा, जो कि आज की डेट में मिसिंग है। और जब आपके पास एक्चुअली टाइम हो, जब आप मोबाइल से थोड़ी सी दूर रहोगे, तो आप अपनी मम्मी को भी बोल पाओगे कि यार मैं सब्जी चॉपिंग में हेल्प कर दूं, दूध उबालना है क्या मैं दूध उबाल दूं, राइट? आप कर पाओगे ये सारी चीजें, वेदर इट्स मेल और फीमेल, करेक्ट? सो उससे क्या है, फैमिली में बॉन्डिंग भी अच्छी रहेगी। और डांसिंग कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, और अपने फ्रेंड्स के साथ आप अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो, राइट? सो ये सारी लर्निंग्स आपको ये पीपीटी दे देंगे हम लोग। सो दीज आर द ऑल गुड हैबिट्स जो मैं हमेशा कहता हूं एज ए पार्ट ऑफ ए लाइफ स्किल आपको सीखनी है। किस लिए सीखनी है? आपको कोई नहीं सिखाएगा ये सारी चीजें, ताकि आप अपना करियर में अच्छा कर पाओ। जो आपने शुरू में बात किया कि आप लाइफ में ये अचीव करना चाहते हो, आप कर पाओगे उस चीज को, राइट? डन? सो वॉज देयर एनी लर्निंग एसोसिएटेड विद इट? सो विल स्पेंड जस्ट 1 minute कि what all things you have learned and what all things you are going to inculcate in your life। ठीक है, फटाफट क्या सीखा आपने? राइट, फोन पे कम टाइम देना, एक दिन के लिए फोन को स्विच ऑफ करना, जो ये प्रैक्टिकली फिजिबल है एंड दैट इज गोइंग टू हैव ए लॉट ऑफ इंपैक्ट। Giving only the time to the phone, which is really needed. करेक्ट, अर्जेंट काम को पहले करना है, ठीक है? उसके बाद अगर टाइम मिले तो मोबाइल देखना है। अभी उल्टा हो रहा है, पहले मोबाइल देख रहा है, उसके बाद टाइम तो बचता ही नहीं अर्जेंट काम करने के लिए, जिसकी वजह से लड़ाई होती है। करेक्ट, ऑफिस में आपका बॉस बोलेगा ये काम तो आपने किया नहीं, टीचर बोलेगी, मम्मी बोलेगी, और प्रॉब्लम्स रहेंगी। हाँ, करेक्ट। तो सर ने जैसे बोला, अपने आप को हमको डिटॉक्स करना है, और जो नोटिफिकेशंस हैं, जो फालतू के नोटिफिकेशंस हैं जिनसे अर्ज होती है, ठीक है, वो बंद करने हैं। ठीक है, जितने भी आपका फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, उनके जो वो हैं नोटिफिकेशन, उनको आप बंद कर देंगे। सर हमने आपसे ये बोला कि फोन इज ए इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हम फोन को बंद नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उसको वाइसली यूज कर रहे हैं, ठीक है? फोन से जितना हो सके आप जो भी इम्पोर्टेंट चीजें करेक्ट, ये कवर हो गया। कुछ और नया? आपको कनेक्ट विद नेचर, विद नेचर कनेक्ट करना है। सर रिप्लेस करना है, स्टॉप की जगह रिप्लेसिंग करना है। परफेक्ट। सेट द बाउंड्रीज। मेरे को 15 मिनट ही मोबाइल देखना है, व्हाट्सएप फालतू स्क्रॉल करिए आप, बट 15 मिनट के लिए करिए। कनेक्ट विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। फैमिली एंड फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्टीमेटली फैमिली एंड फ्रेंड्स नहीं है तो कुछ भी नहीं है लाइफ में, ठीक है? ट्राई न्यू हॉबीज। हमेशा एक हॉबी को बना के रखो, इससे जिंदगी में हमेशा एक फ्रेशनेस रहती है, ठीक है? आप गिटार सीखिए, आप पियानो सीखिए, आप डांसिंग सीखिए, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप सीख सकते हैं। Should not use mobile while eating or before sleeping. खाने के समय बिल्कुल भी नहीं। आप कर Spend time with family. फैमिली, लिमिट करनी है, स्पेसिफिक बाउंड्रीज। बी सोशल, ठीक है? सोशल मतलब मोबाइल से सोशल नहीं, यू नीड टू बी एक्चुअल लाइफ में,
ठीक है, फाइन. थैंक्स एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग. मैनी थैंक्स अ लॉट. सर पीपीटी सबके साथ शेयर कर दीजिएगा आप.